تو پاکی حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، تو ہمیں دل میں پڑھنا چاہیے، زبان سے تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، اور آج کل تو جیسے ٹوائلٹ ہوتا ہے کہ وہ الگ نہیں ہوتا حمام۔ جی، سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ غسل کرنے کے لیے ہم بحث پڑھا رہے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے، تو دونوں دو ٹاپک ہے۔ جی جی قضاء حاجت کے تعلق سے تو بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ دعا پڑھو، اور پھر جو ہے نا ٹوائلٹ میں بایاں پاؤں پہلے داخل کریں، اور پھر جو ہے یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، باہر پڑھ لیں جی پھر جی داخل ہو کے داخل ہوں، نکلیں تو غفرانک کہیں، کیونکہ جی یہ نبی سے ثابت ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن آپ کا سوال ہے کہ غسل کرتے وقت کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو جو بھی عبادت جو بھی ثواب کا کام ہے اس کے لیے دلیل چاہیے قرآن سے اور نبی کے دلیل حدیث چاہیے۔ فرمان سے۔ تو کیا واقعی نبی سے ثابت ہے کہ غسل کرتے وقت جو ہے کلمہ پڑھنا چاہیے؟ اب یہ دلیل دیجئے۔ نہیں امام وہ سر، میں اسی لیے آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں کہ واش روم میں تو ہمیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، میں اسی لیے آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے دلیل سوال بھی ہمیں نہیں نہیں کر رہا پتا۔ ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا غسل کرنے جائیں، واش روم کرنے جائیں، نہانے جائیں تو وہاں کلمہ پڑھیں، بلکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غسل کرتے وقت وضو کی جو نماز کی طرح وضو ہے اس طرح سے آپ غسل کریں، جی، اجی کیا طریقہ سوری، تو الگ ہے، وضو جی بنائیں، وضو طریقہ تو بنائیں معلوم جو ہے۔ جی میں کہہ رہی ہوں وہ تو غسل کا طریقہ الگ ہے کہ پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ پانی ڈالنا میں چاہیے سر کے جواب دے اوپر رہا سے۔ ہوں، آپ جواب دیا، صبر کیجیے۔ تو جزاک غسل اللہ کا خیر۔ کے لیے جو ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ٹوائلٹ بھی ہے اور وہاں بغل میں باتھ روم بھی ہے، تو وہ پورے کے پورے ٹوائلٹ کا حکم نہیں ہے بلکہ باتھ روم کا بھی حکم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر وضو بناتے وقت بسم اللہ کا لفظ ہے تو من میں آپ بسم اللہ کریں اور شروع کر دیں وضو، اور اسی طرح وضو کریں جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے پھر جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈال کر کے یہ وضو غسل کا طریقہ ہے۔ پھر جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو پاؤں کو دھلیں، یہ ہے غسل کا طریقہ۔ یہاں کلمہ پڑھنا اور یہ جو ہے کہ دعا پڑھنا یہ سب اس طرح کی ثابت نہیں ہے، اور یہ سب اپنے من سے خرافاتی باتیں سب لوگ جو ہے ہر چیز میں ایسا ہونٹ ہلاؤ تو سبحان اللہ پڑھ دو، دانت کھولو تو سبحان اللہ پڑھ دو، مسواک ڈالو تو سبحان اللہ کہہ دو، کپڑے اتارو تو ایسے کرو، یہ اپنی من گڑھٹ دعائیں سے پڑھتے۔ استغفار اگر ذکر و اذکار الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی خاص کریں گے کسی کے ساتھ تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ ہاں وضو کرتے وقت میں اگر ہم کلمہ پڑھیں تو وہ کس حدیث میں ہے، نبی کے کس حدیث سے ثابت ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے من سے جو ہے کوئی بدعتی کام کرنا شروع کر دیں جو نبی سے ثابت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو نبی کو معلوم نہیں تھا آپ کو معلوم ہو گیا، تو یہ بڑا خطرے کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے نا بحرے کا ابھی یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یاد بھی کرنا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہمیشہ شیطان کی شرارتوں سے اور جنات بھوت کی بدماشیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اہم دعا ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ جو ہے دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار اگر دونوں دعا کو 3 3 بار کرے، صبح میں پڑھ لیں تو شام تک کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جس جگہ آپ رکے ہیں، اور پھر جو ہے نا اگر شام کو پڑھ لیں تو صبح تک اس گھر میں شیطان ہو، جنات ہو، بھوت ہو، سانپ ہو، کیڑے بچھو ہو، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہے شیطان سوار ہونے کا یا شیطان کو شرارت سوچتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے کا، یہ ٹوائلٹ کی جگہ ہے، تو جب اس دعا کو پڑھ کے جائیں گے تو خلاص وہ اپنی راستہ سائڈ کر دے گا اور وہاں کسی طرح کے نقصان بھی نہیں کرے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ شیطان اتنا بدماش ہوتا ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ان کے خاص جگہوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تو اس وقت اس دعا کے پڑھنے سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور نہانے کے وقت میں جو ہے جسم کا مخصوص حصے کو انسان کھولتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کی شرارت سے محفوظ ہوگا۔ بہرے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی کے اس پاکیزہ اور بہترین خوبصورت سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آپ لوگ نماز میں ہیں، زور سے بول دیجئے، وہ حافظ آمین بن جائیے۔ آمین آمین۔ آمین آمین سبحان
शेख ये पूछना था ना कि एक और रिवायत में गुफरान के बाद एक्स्ट्रा दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अज़हबा अन्नी लज़ा आफानी। क्या कर रहे हैं, आवाज आपकी टकरा रही है, फिर से बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह लजी अज़हबा अन्नी लज़ा आफानी, गुफरान के बाद ये इजाफा है दुआ में और रिवायात में, तो शेख इसका क्या मतलब, सही है क्या है? देखिए कई दुआएं हैं जो मशहूर दुआ है, अगर कोई इजाफा के साथ अगर दूसरी रवायत है और वो सही है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर छोटे से मुख्तसर करना है, जो जितना इंसान को याद हो जाए, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए और जिस जगह के लिए खास है, तो इस इतना ये काफी है। और ये हदीस में ये चीज है। अगर इजाफा है जी और जी। उसमें लिखा है कि बैतुल खला के साथ ये भी नबी की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो नबी के बेशुमार अहादीस हैं, लेकिन सारी अहादीस जी याद नहीं। ये बहुत मशहूर है हदीस है, इनको पढ़िए। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए देखिए कहते हैं। आमीन। आमीन। ये रावी तो अनस बिन मालिक है, ये अंसारी सहाबी है। और अंसारी मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अपने मुसलमानों में हिंदुओं का एक रस्म रवाज, खान और शेख और अंसारी और ये जुल्हा और क्या क्या जब होता है, ये सब वो सब नहीं है, बल्कि अंसारी से मुराद है नौसर और यनसुरो से अरबी का लफ्ज है, मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। तो मक्का छोड़ के जो महाजिर आए थे मदीना में, तो बाहर से मुसाफिर बन के आए थे, तो मदीना का जो खास लोग थे उन्होंने मदद किया। तो इसलिए अंसार यानी जो मदद करने वाले, मुहाजिर जो मक्का छोड़ के आने वाले। तो ये अंसारी साहबी मदीना के रहने वाले थे, नबी के खादिम थे, और ये भी ज्यादा हदीसों के रावी हैं। नबी से जितनी हदीसें सुन करके याद किए थे, पूरी उम्मत के लिए महफूज कर दिए। आयशा बिनते अबू बकर आपको मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी मोहतरमा है। और ये बहुत ही फिक़ह और ये दीन का इल्म रखती थी, आलिमा थी, और शरीयत का इल्म रखने वाली, और वो भी बहुत सारी नबी के हदीस को सुन करके बयान किया है। दोनों हदीस का मफहूमी इजमाली मफहूम क्या है, एक तो ऊपर है अनस बिन मालिक का, दूसरे आयशा रजी अल्लाह अन्हा का। और अनस बिन मालिक वाली रवायत में है कि नबी दाखिल होते ही दुआ पढ़ते थे, आयशा रजी ने कहा कि न हरम से, टॉयलेट से निकलते वक्त भी दुआ पढ़ते थे। तो कह रहे हैं कि दोनों का खुलासा किया हुआ। तो कहते हैं जहां बैतुल खला बने हैं उनमें कदाए हाजत के लिए जाते वक्त मज़कूरा दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह जहां कहीं भी आप कदाए हाजत के लिए जाएं, खा वहां बैतुल खला बने हों, जैसे देहात वगैरह में, खेतों में जाते हैं इंसान, नालों में और सहरा और मैदान में वगैरह में, तो आप वहां भी कदाए हाजत के वक्त में ये दुआ जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां भी शैतान पहुंच जाते हैं, ये बदमाश। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से ये पता चलता है कि आप बुलंद आवाज से ये दुआ पढ़ते थे, तो हमें भी आपकी इक्तिदा करते हुए बुलंद आवाज से पढ़नी चाहिए। कैसे पता है हदीस में कि किस जगह का लिखा हुआ है कि जोर से पढ़ते थे? अगर वो जोर से नबी नहीं पढ़ते, क्योंकि अमल किया है, कहा नहीं है, अमल किया है, नबी पढ़ते थे जोर से, तब ना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु सुन लिए, क्योंकि पानी लेके जाते थे, खिदमत करते थे। कह रहे हैं कदाए हाजत की जगह में दाखिल के वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस पढ़ना ये मुस्तहब है। दूसरा इस हदीस से मफहूम निकलता है बैतुल खला हो या हम्माम, टॉयलेट में दाखिला के वक्त में बायां पैर यानी लेफ्ट है, लेफ्ट जो है लीग, लेग जो है, बायां पैर, और निकलते वक्त में दायां पैर निकालना मुस्तहब है। समझ रहे हैं ना? कदाए हाजत की जगह से निकलने के बाद गुफराना का कहना मुस्तहब है, नेकी का अमल है। हम्माम वगैरह में अल्लाह के जिक्र व अज़कार से इंसान को बचना और परहेज करने पर एहतमाम करें। चौ पांचवा है कि हम्माम में अल्लाह के जिक्र करने से लोगों को रोकना चाहिए, अपना भी ना करें, उनको भी बयान करें कि वो गंदी जगह है, वहां पे जिक्र व अज़कार ना करें। तो ये जो है ना हदीस है, इसका और मफहूम किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, ताकि बताया जाए, और नहीं समझ में आ गया तो फिर हम अगले हदीस की तरफ मुंतकिल होते हैं। सबको समझ में आ गया? जी उस्ताद जी जी आगे। सर। जी उस्ताद। अच्छा, जिन लोगों ने जी कहा उनको समझ में आया, जिन लोग नहीं कहे उनको समझ में नहीं आया। आ गया उस्ताद समझ उस्ताद। आ गया है, एक सवाल है। चलिए, दो सवाल करना पड़ेगा आपको। उस्ताद, एक बहन ने किया था ना वॉशरूम में, मतलब हम बिस्मिल्लाह वगैरह दुआएं वगैरह पढ़ सकते हैं, तो वुजू करने के जब हम वुजू मुकम्मल करते हैं उसके बाद हम वुजू के बाद की दुआ पढ़ते हैं, तो क्या हम उस वक्त वॉशरूम में वो दुआ पढ़ सकते हैं या फिर बाहर निकल के?
देखिए आप जो है नमाज के लिए जो है एक होता है वजू और एक होता है नमाज, नमाज के लिए वजू, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ जो जी है ये वजू करके आप ये नमाज के लिए निकल नहीं जा रहे हैं, वहां वजू के बाद और भी अमल शुरू है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बिस्मिल्लाह करके वजू शुरू किया और फिर गुस्ल का वो मरहला शुरू हो जाता है, और फिर गुस्ल करके निकलिए तो वो दुआ पढ़ लीजिए तब भी चलेगा, समझ रहे हैं ना। जी उस्ताद, लेकिन आप अक्सर हम जब नमाज के लिए वुजू बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें वॉशरूम में ही दुआ को पढ़ना है। देखिए वजू बनाते वक्त अगर मान लीजिए नहाने का अगर नहीं है तो सिर्फ सोच रहे हैं कि इधर हम पानी मुंतशिर हो जाएगा और इस क्या कहते हैं हम्माम ही में वहां वजू करेंगे, तो जा करके अपना पानी लेते हुए जो है वहां जाए बिस्मिल्लाह मन में पढ़िए वजू शुरू कर दीजिए, समझ में आया। और बाहर निकलिए तो फिर जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये बाहर निकल करके दुआ पढ़िए, क्योंकि आप नमाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहां जो है गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कहा बिस्मिल्लाह करके जो वजू के होता है, पहले हाथ धुलना चेहरा धुलना ये शुरू कीजिए, फिर अपना सर पे पानी रखिए और फिर पूरे वजू जो है उसमें शामिल है। अब वजू करके निकलिए तब फिर वो दुआ पढ़ सकते हैं। शुक्रन उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। जी उस्ताद जी, एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आजकल हमारे जो बाथरूम्स हैं वो इकट्ठे ही होते हैं, वहां पर दोनों गुस्ल का भी और दूसरा एक ही जगह पर होता है, तो जब हम गुस्ल के लिए बाथरूम में जाएंगे तो फिर जो हमने दुआ आज पढ़ी है हदीस में उस वक्त उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? आप किस लिए जा रहे हैं, गुस्ल के लिए जा रहे गुस्ल हैं करने। या मतलब कज़ाए हाजत के लिए? दो चीज है, कज़ाए हाजत अलग चीज है, गुस्ल अलग चीज है। हम्म। तो ये नहीं, साफ गुस्ल के लिए। आपके सवाले से जवाब मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आप किस इरादे से जा रहे हैं। उस ठीक इरादे है। से पढ़ जा रहे हैं तो आप कज़ाए हाजत के लिए ये कीजिए, वो दुआ पढ़िए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जी। मेरा भी सवाल है। जी जैसे कि गुस्ल के लिए जो हम वजू करते हैं तो उसके लिए बिस्मिल्लाह को तो बाहर ही पढ़ लेना है ना, वॉशरूम में घुसने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। देखिए मुझे वॉशरूम कैसे? वॉशरूम का दायरा बहुत दूर है, एक है वहाँ टॉयलेट है और यहाँ आपका जो है वॉशरूम भी है, दोनों जो है अलग वो एरिया है, ये अलग एरिया है। आप जो है ना वजू के जगह पे जा रहे हैं तो वहां बैठ करके बिस्मिल्लाह कहेंगे तो तभी कोई हर्ज नहीं, और बिस्मिल्लाह जोर से कहने की जरूरत नहीं है, मने मन कहें और फिर जो है शुरू कर दें। नहीं, वो हमारा टॉयलेट वॉशरूम में एक ही है। हाँ तो ये किया तो बाहर ही कर लें, वहां भी करेंगे तो अगर वजू का हुक्म अलग हो जाता है, उसका हुक्म अलग हो जाता है, उसकी एक मिसाल समझ बताता हूँ आपको ताकि आप लोगों को सस्पेशन दूर हो। औरत तो एक ही होती है ना, हाँ। जिस्म एक ही है ना, एक ही आंख है, सब कुछ बाल हर कुछ एक ही है, लेकिन हम्म। एक ही औरत को बहन कहते हैं, एक ही औरत बीवी हो जाती है, ये कैसे हो सकता है। एक ही औरत के लिए ये बीवी बन जाती है जो उनके लिए जो हलाल है सोना, और वही औरत जो है किसी के मर्द के लिए वो भाई बनता है, जबकि कोई भाई बहन के लिए ऐसा नहीं कि उसको जो है ऊपर पे गुल फूल लगा हुआ है तो वो बहन हो जाएगी, और बीवी है तो उसको जो है घूंघट उठाए रखी हुई है तो बीवी हो जाएगी। वही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं बहन होगी तो उसको 3 हाथ हो जाएगा, वो 2 ही हाथ की बहन है, लेकिन वो हुक्म हुक्म का फर्क है। तो आप गुस्ल के लिए जा रहे हैं या टॉयलेट के जा रहे हैं, और उसमें भी जा रहे हैं तो टॉयलेट की जगह अलग होती है और यहाँ नहाने की जगह अलग बनी हुई होती है, तो उसका हुक्म से हुक्म फर्क हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन आजकल की मजबूरी यही है ना कि जो गुसल खाने जो बने वो एक साथ बने हुए और छोटे छोटे से भी होते हैं, आजकल की जो कंस्ट्रक्शन है वही उसमें। वही बात है, वही बात है मेरी बहनें, ये जमाना इतना मतलब बदल गया है कि पहले लोग घर में खाते थे और बाहर कज़ाए हाजत करते थे। आज लोग बाहर होटल में खाते हैं और घर में आकर के गंदगी फैलाते हैं। तो जमाने का क्या कहिएगा। आज घर में बनाना चाहिए और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, तो आज बाहर होटल में खाता है, घर में लेटरिन करता है। लेकिन पहले के जमाने में होता था कि घर में खाता था और बाहर जाता था। तो अब फैशन है कि कल होकर के बेड के नीचे ही बनाना शुरू कर देगा। तो इंसान को सहूलत होनी चाहिए तो घर में कम से कम बाहर जो है टॉयलेट बनाएं, और अगर जगह कुशादा है तो नहाने की जगह दूसरी जगह बनाएं। लेकिन आप जगह की तंगी है तो कभी कुछ बहाना है तो कुछ बहाना है तो कुछ फैशन है, तो क्या क्या फैशन है, बहुत सारे फैशन आजकल लीजिए।
अब आंगन में नहाएगी तो पूरे तौर पर नहीं खोल पाएगी कपड़ा। आज फैशन बन गया है कि कौन ऐसे है जो जाके कपड़ा उतारती नहीं है और पूरे नंगा होके नहाती है। ये भी एक सवाल है, बहुत सारी बहनें पूछती है कि नंगे होके नहाना जायज है क्या है। लेकिन सोचना चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमारे सब हर जगह देख रहा है, लेकिन उस वक्त हम्माम में कोई याद करता है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, हमारे पास फरिश्ता है वो देख रहा है। वो सब देख के शर्माता हो गया कि ए बनाते हवा, हवा की बेटियों, जिसको आपको ढांकने के लिए कहा गया है, लेकिन हम्माम में जाके पूरे चीज। तो ये सब बड़े मशाकिल है। आप अगर माशाल्लाह दीनदार समझदार है तो घर ऐसे बनाइए कि टॉयलेट अलग और वजू का मामला अलग, ताकि ये झंझट हमेशा के लिए पाक। समझ रहे हैं ना। और कोई अगर इरादा कर ले कि हाँ हमको जो है दुआ का मामला होगा, हदीस के तत्वीक का मामला होगा, आज हम बरत नहीं रहे, कल हमारे बच्चों और बीवी का मामला बनेगा, तो इस तरह से इंसान को टॉयलेट अलग बनाए, बाथरूम नहाने का लिए अलग बनाए, ताकि झंझट ही क्लियर हो जाए। उससे भी नहीं ज्यादा तो वजू बनाने वाला बाहर जो है बेसन होता है वो डाल दीजिए अपना, यहाँ वजू बनाएंगे वहां बिस्मिल्लाह पढ़िए जोर से। बहरे कब ये मसाइल सब बन रहे हैं। अब जितना फैशन बढ़ रहा है उतनी बेचैनी बढ़ रही है, जितने जो है आराइश आसाइश के सामान आ रहे हैं उतने घर से बरकत जा रही है, जितने सुकून और आराम के जो आलात हमारे घर में एसी और न जाने कूलर पंखा और सब कुछ आ रहा है हीटर, तो आज इंसान के जहन से सुकून खत्म होता जा रहा है। आज से ज्यादा परेशान कोई है बताइए आप लोग। आज पहले जमाना में खिड़की खोल दीजिए, फ्रेश हवा खाइए, मस्त रहिए। पहले जो अपने खेत खलियान की सब्जी खाते थे लोग बीमार ज्यादा नहीं पड़ते थे। आज जो है पहले पैसा कम कमाते थे, बीमारी कम होती थी। आज ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा बीमारी हो रही है। तो ये सब जिंदगी का तरीका है, लेकिन एक इंसान इस्लामी तरीके पे सोचे कि जब टॉयलेट बनाता है, आप किसी मुसलमान को देखा है कि खाना काबा की तरफ टॉयलेट चाहे चेहरा मुड़ने का या पीठ फेरने का बनाया हो? हमेशा उत्तर दक्षिण बनाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो अगर जब इतनी आप रियायत करते हैं तो कम से कम टॉयलेट और बाथरूम को अलग अलग बनाइए। कम जगह है तो बाहर वजू खाना बना दीजिए, ताकि वहां जो इस तरह के झंझट में ना पड़े। चलिए बहरे क्या। एक मोहतरम सवाल पूछना था बता रही ताजी। हूँ, आपने जैसे कि तज़किरा किया है कि क्या कपड़े मतलब डाल के गुस्ल करने का हुक्म है औरत के लिए, कपड़े के साथ गुस्ल का हुक्म है? मैं आपकी रहनुमाई चाहती हूँ। आपने जैसे कि तज़किरा किया है, तो क्या ये सुन्नत यही है कि हमें कपड़ों के साथ गुस्ल करना चाहिए? सवाल आपके जवाब में जो है ना, पता नहीं मैं जो क्लियर समझ में क्या कहा, औरतें गुस्ल करेगी, ये क्या बोला आपने? मुकम्मल बगैर कपड़ों के नहीं होना चाहिए, कपड़ों के साथ गुस्ल करना चाहिए हमाम में। जी जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह ऐ- खैर। यानी सवाल ऐसा कर रहे हैं या क्या कर, यानी सवाल कर रहे हैं? सवाल देखिए, सबसे बड़ी शायद वो बात है। पूछ रहे हैं ना, गुस्ल के वक्त जिस्म पे कपड़े रहने चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं हाँ वो। ये बिल्कुल रहना चाहिए। जिस जिस चीज को ढांकने के लिए कहा था कि मियाँ बीवी को भी पूरे तौर पे बढ़ाना, कंबल से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि कंबल के ऊपर हो नीचे हो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बिल्कुल तौर पे बढ़ाना ये सही चीज नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंधे पे फरिश्ता है, ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है, और बाथरूम में हम पूरे तौर पे आज कौन बरतता है? सबके साथ वही आज पूरा बर्बाद है, जो वेस्टर्न और कल्चर आकर के सबको तहस नहस कर रखा है। इस्लामी आदाब के सारी धीरे धीरे अकदार खत्म होती जा रही है। शर्म हया का जनाजा उठता जा रहा है। बड़े आस्तीन वाला कपड़ा पहनने को ऐब माना जा रहा है, जबकि हर एतबार से बापर्दा लिबास लगाने से उनकी खूबसूरती ही ज्यादा, उनका जिस्म के जो है बहुत सारे आलूदगी से, बहुत सारी गंदगियों से पाकी का जरिया है। लेकिन कपड़ा छोटा पहनना, जिस्म की नुमाइश करना, ये आजकल उसको कहा जाता है मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन ऑफ या सेलिब्रिटीज ऑफ वर्ल्ड, ये उनको कहा जा रहा है। बहरे क्या बाथरूम मर्द हो या औरत हो, पर्दे के अंदाज में करना चाहिए। और पर्दे क्या चीज है, किन किन चीजों को कहा है कि मतलब औरतों के पास खोल सकती है, किसके पास नहीं खोल सकती है, कम से कम अलल अकल इतने ढांक करके जो है गुस्ल करे। वैसे तो वॉशरूम बंद होते हैं आजकल, वॉशरूम लॉक करके करते हैं गुसल। लॉक तो करते हैं, ऐसे में तो लेकिन कर कम से कम सकते हैं ना। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला तो ऊपर देख रहा है ना। अल्लाह ताला तो बरहना होने से मना किया है ना, कहीं भी के बाद लिबास उतार करके अपने
انسانیت سے باہر نہیں ہونا چاہیے نا. آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ آج کل کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کہیں سوراخ سے کہیں کہیں سے ویڈیو بنا لیا جاتا ہے، اور اسلامی یہ طریقے اور ادب کے خلاف ہے یہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، غسل کا ایک سوال تھا. غسل کی فرائض میں آتا ہے نا 3 بار کلی کر کے اور 3 بار ناک میں سنت پانی سنت میں چڑھا سے کے. آتا ہے، یہ سب سنت ہے، فرائض میں سے نہیں، سنت ہے. آپ کریں گے نبی کی سنت کی اقتداء میں ثواب ملے گا. اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب نہیں ملے گا، لیکن سنت کے مطابق آپ کو غسل نہیں ہوگا. جی، لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا فرائض میں کیا کیا آتا ہے غسل کے؟ میرے کہ فرائض جو ہے نا، آپ موبائل چلاتے ہیں، لکھیے اس جی پہ پورے کے پورے فرائض آئیں گے. فرائض گنانا شروع کریں گے اور سنت گنانا اور مستحبات گنانا شروع کریں گے تو پورا ختم ہو جائے گا. اس لیے اگلے حدیث میں پڑھیں اور آپ لکھیں تو پورے آپ کو آ جائے گا. چلیے آگے پڑھیے. استاد میں پڑھوں؟ پڑھیے. کون پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ پڑھیے. عالیہ. پڑھیے عالیہ. عن ابی ہریرہ نہیں، التحذیر من الغضب، غصے سے روکنا. حدیث نمبر 9. جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری برقم 5888. جی. دوسرے آدمی پڑھیے. عن أبي هريرة الله أن رجلا قال للنبي أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري برقم 5888. جی ایک آدمی اور پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. حدیث نمبر 5888. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. دیکھیے آج کی حدیث ہے، بہت اہم ہے اور زندگی سولوشن آف لائف ہے. اس حدیث کو سولوشن آف لائف کہیں گے، چاہے آپ کے انڈیویجول لائف ہو یا سوشل لائف ہو، چاہے آپ میریٹل لائف ہو یا سنگل لائف ہو. سارے لائف کے سولوشن ہے، سارے مسائل پرابلم کا سولوشن اس حدیث کے اندر ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہ ان رجلا قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور نبی سے فرمایا اوصنی کہ اے پیارے نبی ہم کو وصیت کیجئے، ہمیں سمجھائیے، ہمیں نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، چاہے جتنے حالات خراب ہو جائے تم غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. فردد مرارا، لیکن بار بار کرے، ٹھیک ہے ایک آپ نے سمجھایا غصہ نہ کرنے کا، اور بھی دوسری چیز بتائیے کہ اور کیا وصیت ہے آپ کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، یعنی وہ بار بار پوچھتے رہے، نبی ہر بار ان کو یہی کہتے رہے کہ غصہ نہیں کیجیے. آپ سب کو پتا ہے، آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. آپ کے پاس غصہ آتا ہے تو اکیلے آتا ہے، جب جاتا ہے تو کیا کیا ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے؟ ساری چیز. جی عقل سب سے پہلے تو عقل. عقل لے کے جاتا ہے، بہت کچھ لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا. نا کہ بیٹھ جائیں پانی پی جائیں، کیا؟ غصہ دور کرنے کے. یہ سنت ہے نا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پی لیجئے یا وضو کر لیں، اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی جو جگہ ہے تبدیل کر لیں. تھی کسی نے کہا تھا کسی کے گھر غصہ آتا ہے تو اکیلے آتا ہے، لیکن جاتا ہے تو بہت کچھ لے کے جاتا ہے. وہ صحیح کہا ہے آپ کو. غصہ آئے گا تو پہلے جو ہے برتن اٹھا. ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لا تغضب، 3 مرتبہ سوال کیا اور تینوں مرتبہ کہہ رہا ہے لا تغضب، کہ آپ غصے نہ کریں، غصے پہ کنٹرول کریں. اور کہا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب،
दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो शख्स नहीं है, पहलवान का नाम सुना है ना, वो अखाड़े पे जो लड़ता है। आजकल लड़कियां भी माशाल्लाह लड़ने लगी हैं, अपनी बेहयाई फैलाती हैं। तो कहा कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो किसी को उठा के पछाड़ दे, पटक दे। पहलवान वो शख्स है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले, ये सबसे बड़ा मतलब पहलवान है। तो ये जो है कहाना अर्ज है कि गुस्से जो है इंसान के सारे फसाद का जड़ है, और ये गुस्से पे कंट्रोल करना सारे समस्या और परेशानी और प्रॉब्लम का ये हल है। तो ये जो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया वो ब्रेन, गुस्से पे कंट्रोल लिया, बीपी उन्हें नहीं बढ़ा, ये सब सारे ये चीज है। तो देखिए कितनी प्यारी नसीहत वसीयत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहा कि ला तग़ज़ब। तो आज भी ये अगर नबी से आप सब मोहब्बत करते हैं, और करना भी चाहिए, आज से इस हदीस पढ़ने के बाद जब भी किसी के पास गुस्सा हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि गुस्सा दिलाता है शैतान। और फौरन कहेगा आपको, आपके शौहर ने आपको कभी कपड़े नहीं दिया, जोड़े नहीं दिया, और चढ़ के बात करेगा, आपको कान में फूकेगा शैतान। फौरन लगे आपको मैं क्या जानती हूँ, इतनी से शादी से हुआ कि आपने, मैंने कभी आपके अंदर सुख पाया, आराम पाया। अब लो शैतान कान में फूक रहा है, आप गुस्से जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप ठंडे मिजाज रहिएगा, उनको बोलने दीजिएगा, इख्तलाफ नहीं बढ़ेगा, और फिर आपको जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जहनी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो गुस्सा न करना, और गुस्से को पीने वाली लड़की हो या लड़का हो, मर्द हो या औरत हो, वो माशरे में बहुत ही इज्जत के निगाह से देखे जाते हैं कि माशाल्लाह वो बड़ा मुतहम्मिल मिजाज है, बड़ा बुर्दबार है, बहुत ही हर मसाइल को झेलने वाला है। तो ये गुस्से पे कंट्रोल आज करने की जरूरत, वरना हर को आज बीपी बढ़ रहा है। बहरे क्या अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दीन की समझ, दीन का इल्म से दे, और फिर उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पे जो गुस्से सारे फितने का जड़ है, सारे प्रॉब्लम की जड़ है, अल्लाह ताला हमें हर मौका और हर मसले पे गुस्से पे कंट्रोल दे, गुस्से पे जब्त दे, और बर्दाश्त करने का क्षमता और शक्ति और कुव्वत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। आमीन। तो सबको याद रखना चाहिए, और जो है 2-3 आदमी सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी लोग क्यों पीछे रहते हैं। तो आप लोग भी आइए, इबारत खानी कीजिए, हिम्मत खुलेगी, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, और ये जो है दीन की खूबसूरती है। और अल्लाह ने दीन सीखना इतना आसान बना रखा है कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और देखिए सवाल जवाब करते हैं, पढ़ते हैं, इससे हिम्मत खुलती है, जबान खुलती है। बाद बच्ची माशाल्लाह इतनी अच्छी इबारत खानी करती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है, लेकिन मैं पूछ नहीं पाता हूँ कि वो आलिमा है या कहीं पढ़ रही है या पढ़ा रही है या कोई टीचर है। बहुत अच्छा मतलब इबारत खानी अरबी की बहुत बढ़िया कर रही है। बहरे कि अब अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के अंदर इल्म में बरकत दे, और अपने दीन के सीखने की तौफीक दे, और फिर इस दीन इस्लाम के हर हुक्म को अपने ऊपर नाफिज और इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। बस आप ही को चाहिए, और बाकी सब लोगों को नहीं चाहिए। आमीन। आमीन। हमारे लिए दुआ पूरी कर ले। तो सिर्फ कुछ ही लोग चाहते हैं कि नमाज में है जो आमीन नहीं करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। धीरे से बोल दीजिए, पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है 5 रुपया आपका, लेकिन आमीन या रब्बल उस्ताद आलमीन। आमीन किया, लेकिन माइक नहीं खोला था। कोई बात नहीं है, तो सुनाना मकसद नहीं, आमीन कह दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। जज़ाकमुल्लाह खैर। चलिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।